2-3 साल ही है आपके पास, तो एक खास डेली रूटीन क्या हो सकता है? तो इट्स नॉट दैट सोशल मीडिया खराब, अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप उसको इंसेसेंटली यूज कर रहे हो और बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो वो आपके अंदर फॉल्ट है. I really think that it's very important that education with values are important. After selection your priorities are so different, you have become so much more responsible. डरने की तो कोई भी बात नहीं है इस पेपर से, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा. Or in fact, I cleared this exam when exam was my last priority. You know, if you have good intentions and if you have that drive in you, the world needs you, यार. स्ट्रगल एंड शाइन, इट मीन्स जितना आप स्ट्रगल करोगे उतने ही आप शाइन करो. नमस्कार फ्रॉम वायरल कलाकार एंड वेलकम टू अनअकैडमी. Lights, camera, and action! मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. इस मंजिल को पाने के लिए न जाने कितने एस्पिरेंट दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ उस एक दिन के लिए. जिस दिन उनकी आंखों में चमक हो, उनकी माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू. प्रयागराज, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में कई एस्पिरेंट हैं जो तब त्याग से सफलता का वो पल जीना चाहते हैं. आपकी तैयारी अच्छी हो, आपको सफलता मिले और इस सफ़र में भटकाव कम हो, ये पॉडकास्ट उसी का एक छोटा सा प्रयास है. और इस पॉडकास्ट में आज हम आपको उन राहगीरों से मुलाकात कराने जा रहे हैं, बात कराने जा रहे हैं जिनको मंजिल मिल चुकी है. सो इस खास पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं अंबिका रैना मैम, ऑल इंडिया रैंक 164 CSE. दूसरी मेहमान है आकांक्षा गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 408 CSE. सो प्लीज वेलकम अंबिका मैम एंड आकांक्षा मैम. कैसे हैं मैम आप लोग? Great, how are you? गुड गुड. तो इस पॉडकास्ट के सबसे शुरुआत में आप अपनी जर्नी और अपने परस्यूइंग करियर के बारे में छोटी सी ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने सवाल पे जाएंगे. पहले आप. Okay, so I was All India rank 164 this time, but this was my third attempt. So the first two times I was not able to qualify the mains. But finally 2022 में जाके qualify हुआ and I was fortunate enough to be allocated my service. And that's my journey. ओके मैम. My name is Akansha Gupta, and this was my fourth attempt. In my first 3 attempts, I was not even able to clear prelims. So this was the fourth attempt. I cleared prelims, then mains, and then interview. And I secured All India rank 408 in UPSC CSE 2022. ग्रेट. तो पहला ही सवाल ये आता है मैम, जब यूपीएससी इतनी बड़ी जर्नी है, कोई भी एस्पिरेंट जब भी शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं से उनको इंस्पिरेशन मिलता है. आप कहाँ से इंस्पायर्ड हुई थी यूपीएससी जर्नी को शुरुआत करने के लिए? Okay. Actually बहुत ही specific experience था मेरा. ओके. I was interning in Switzerland during my college years, and वहाँ पे जाके मुझे realize हुआ for the first time that I wasn't just myself. I was someone from India. I was Ambika Raina from India, you know, and that put a huge sense of purpose in me that I never found. उससे पहले कभी ऐसा feeling नहीं आया इतना profound वाला ना, इतना कि अच्छा मैं कुछ तो important चीज़ की part हूँ. And वहीं से वो चीज़ शुरू हुई, I think, towards the country, the love towards the country, the need to do something for the nation and, you know, make everyone proud. और वैसे वाली, I think that was the trigger point. Yeah. For me, it was somewhere my household experience. My Mausaji is in service, is in state service from UP. So I have been looking upon him, that what kind of work he used to do. I always used to admire him. He always used to tell us the stories that how people come to him and ask for some work and how he's able to serve them. So I always used to admire that how fortunate he is that he has got that opportunity to serve people. And trust me, when हम बाहर जाते हैं, हम metro से जा रहे हैं and
हमें अगर मौका मिलता है हम किसी को रास्ता भी बता सके तो वी फील फॉर्चुनेट वी डिड समथिंग गुड टुडे. So just imagine if we are in the job where we get every day ample amount of opportunities to do something. So I always used to admire that. So from there, in my subconscious mind, I always had this. But again, I never had this courage. I always used to think that, oh my god, this is UPSC exam. There's so much hype around the exam. It's very tough. अलग planet से कोई लोग आते हैं जो ये clear करते हैं. So that's why it took me a long to decide that I want to sit in the exam. हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूं यूपीएससी आईएएस के ORN वाले सेंटर। यहाँ पे यूपीएससी के तैयारी के लिए बेस्ड फैकल्टी मिलते हैं, आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है और हमारे लर्नर्स के फीडबैक भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारा नया बैच जो है 29 मार्च को शुरू हो रहा है और अगर आप हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर में भी हमारा एक सेंटर है जिसका बैच 29 मार्च से शुरू हो रहा है। तो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स मुखर्जी नगर के हमारे इस बैच में एडमिशन लेने के लिए सेंटर पे विजिट कर सकते। और अगर आप प्रयागराज से हैं, तैयारी प्रयागराज से कर रहे हैं, तो हमारे प्रयागराज वाले सेंटर पे आप न्यू बैच जो कि 28 मार्च को शुरू हो रहा है उसके एडमिशन एंड इंक्वायरी के लिए प्रयागराज के सेंटर पे विजिट कीजिए। आप अनअकैडमी आईएएस के नियरेस्ट सेंटर पे जाएं, काउंसलर से बात करें कि कैसे आपकी तैयारी आईएएस बनने की पूरी हो सकती है। यहाँ आपको हाइब्रिड लर्निंग प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती है जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप ORN में हैं तो ORN सेंटर पे जाइए, अगर आप मुखर्जी नगर से हैं तो मुखर्जी नगर सेंटर पे जाइए और अगर आप प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज वाले सेंटर पे जाइए। तीनों लोकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोकेशन लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट ज़रूर कीजिए। और ये आपकी पढ़ाई जो स्टडी रही है ग्रेजुएशन से पहले, वो बैकग्राउंड क्या था, कैसे अलाइन किया आपने यूपीएससी में? Completely different background. I am an architect. मेरा डिग्री बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि एक डिज़ाइन कोर्स है और बिल्कुल भी दूर दूर तक यूपीएससी से कोई रिलेशन नहीं है। सो उससे कोई भी रिलेशन नहीं था मेरी प्रिपरेशन का। आई थिंक दैट वाज जस्ट अ वे फॉर मी टू फाइंड माई जर्नी एंड आई थिंक मैं हर पॉइंट इन माई लाइफ पे ना ये सोचती हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है और ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी लाइफ को मीनिंग दे रही है एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ एंड देन आई गो फॉर इट एंड दैट्स व्हाई आई परस्यूड आर्किटेक्चर एंड दैट्स व्हाई आई केम इनटू सिविल सर्विसेज। ओके, यू शेयर योर लाइक आपने ग्रेजुएशन में से ही तैयारी करने के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन करी या फिर 11 से कुछ और स्ट्रीम रहा फिर आपने इसको अलाइन किया? व्हाट वाज योर My story to start preparing for UPSC is completely different. Actually, what happened was I was very scared to opt for UPSC. So I was going with the normal path. Let's do computer science honors, and I was I did graduation from University of Delhi, and then after graduation, I opted for higher education. For that, I had to go out of Delhi. So my parents were like, people come here to study and you want to go out of Delhi? So they denied. You don't have to go anywhere. Do something which you can do in Delhi only. So I was like, and after in that process, जब मैं उनको समझा रही थी कि it's important, बहुत अच्छी companies offer देती हैं, it's a good college and really want to go there. So someone very close to me told me, what do you need? Why do you go to like outside Delhi? Because at last, when you'll get married, you'll have to leave the job. So that thing triggered me. So I thought, let's do something where no one can force me to leave. And that's how in my subconscious mind, I had this thing that I have to prepare for UPSC. But that was the trigger point which made me go into it and started preparing. अमेजिंग। आई मीन आप दोनों की जर्नी बहुत ही अलग और यूनिक रही है यूपीएससी को लेकर के। दैट यू ऑलरेडी सेड कि आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग में आर्किटेक्ट में थी, लाइक इन आर्किटेक्ट, यस in a creative aspects of career, and you changed your career to UPSC journey. एक वो दिमाग जो आप क्रिएटिव रहते हैं, आप फ्री रहते हैं और एक ऐसा सेट पैटर्न डेली रूटीन में स्टडी करना होता है, ऑलरेडी इतने हाइप है कि इतनी बड़े एग्जाम की तैयारी है। हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम और कमिटमेंट्स कि कैसे हमें टाइम देना है यूपीएससी को और अपने पर्सनल कमिटमेंट्स को कैसे पूरा करना है? सो एक्चुअली इवन दो काफ़ी क्रिएटिव फील्ड है आर्किटेक्चर, माई कोर्स वॉज वेरी वेरी रिगरस, लाइक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कोर्स होता है, एटलीस्ट इन माई यूनिवर्सिटी. सो आई वॉज यूज टू लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग एंड वर्किंग एंड लॉन्ग आवर्स ऑफ इवन ऑल नाइटर्स. इनफैक्ट जितने ऑल नाइटर्स मैंने आर्किटेक्चर की ग्रेजुएशन के लिए निकाले हैं
उससे आधे भी नहीं निकाले मैंने यूपीएससी प्रेप के लिए. So I was quite used to working hard. Of course, it's a different kind of hard work because once you're working with your hands into something creative versus you're sitting and you're reading, तो एक अलग type का hard work होता है. But it's quite similar. I think if you're used to working hard, you manage your time. वो डेली रूटीन में चीज़ें आ ही जाती हैं. यार रूटीन पता है मैं बनाने की बहुत कोशिश करती थी. है ना? आपने भी वो दीवार पे चिपकाया है वो 7 से 8, 8 से 9. अरे बहुत नहीं किया. मेरी तो पूरे वॉल्स वर लाइक फुल ऑफ कि यहाँ मैप्स और यहाँ पे शेड्यूल्स और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और मतलब मैंने तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री चिपका के रखी थी अपने वॉल्स पे. We had a 4 or 5 पॉडकास्ट. मैंने सारे गेस्ट से ये सवाल पूछा हाँ था जी कि क्या आप भी ऐसे एस्पिरेंट रहे जो बड़ा मैप देख करके वाइब लेते थे. तो आप वैसे थे? बहुत ज्यादा. मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं थी. मुझे डर लगता था. आपको सीरियसली लगता था लाइक यू टेल योर स्टोरी कि कैसा मतलब आपने रूम को सजा रखा था, एम्बेसडर गाड़ी रखी थी? नहीं एम्बेसडर वगैरह कुछ नहीं था. एक वाइट बोर्ड था बड़ा सा जिस पे मैं रोज अपना लिखती थी शेड्यूल क्या होगा. उसमें मेरा वीकली शेड्यूल रहता था, डेली शेड्यूल रहता था. वो सब मैं बहुत अलग अलग कलर्स के पेन से मतलब आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ therapeutic exercise for more me of a architecture. solve everything कि ऐसे होना चाहिए. Then there was a soft board जिस पे मैं change करती रहती थी. कभी उस पे मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लगाती थी जो मुझे याद करने होते थे. कभी मैप्स लगाती थी, कभी मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इतने सारी चीज़ें होती हैं जो याद करनी होती हैं. whether it's dates or acts or so many things are there and you have to remember them like the tip of your tongue. मतलब वो आपके इतने ingrained हो जाने चाहिए. तो वो एक दिन में होता नहीं है. सो यू सपोज टू रीड इट अगेन. तो एवरी डे मैं थोड़ा टाइम रखती थी कि मैं जाके ना सॉफ्ट बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती थी. दैट इवन इफ आई एम नॉट एक्टिवली ट्राइंग टू रिमेंबर देम एटलीस्ट आई एम लुकिंग एट इट एंड इट्स कहीं तो दिमाग में जा रहा होगा. तो जब यूज में आएगा तो आएगा. तो आपको भी ऐसा लगता था कि जो नोट्स हमने डिजाइन कर रहे होते हैं, हाइलाइट्स बना रहे होते हैं, उसको ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन से करने पे वो आपको लगता है कि वो ज्यादा जल्दी याद हो जाते हैं? ज्यादा जल्दी का तो पता नहीं. आपने कहा कि डिजाइन करती थी. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ज्यादा जल्दी. आई थिंक उसको याद करने में ज्यादा मजा आता था मुझे. सो आर्किटेक्ट. यस आई ऑलरेडी टोल्ड. आप क्यों नहीं करती थी? मतलब आप इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये कहना होता है कि तैयारी से पहले वाइब चाहिए होती है. तो वो वाइब और एक सेट पैटर्न को कैसे देखती हैं आप? See, I'll tell you because I belong to Delhi only. So I never stepped out of my house because I prepared while staying at home only. So मेरी vibe थी 4 बच्चे मेरे घर में रहते थे. तो उनके बीच में मैं पढ़ती थी. वो सेट करते हाँ, वो सेट करते थे. तो मैप नहीं होता था, 4 बच्चों की फोटोज होती थी मेरे सामने. So मैंने फैमिली में रह के ही पढ़ाई करी है. So we were talking about commitments. So मेरे बहुत commitments थे. Though my family was very supportive, they made sure that they don't burden me with household things. But still, when you are living at home, you have the commitments. तुम्हें उनको डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए लेके जाना है, राशन लेने जाना है, कुछ भी लेके जाना है. I was the driver of my house. So जाना पड़ता था. But then again, you have to make sure कि आपकी priorities clear हो. You have to set your priorities. And again, मेरा ये होता था कि मैं बाहर भी जा रही हूँ, I'm studying something. I am studying in my mobile. Or at least whatever time I have in my hand, I make sure that I efficiently use it. Okay. It's very difficult to do that, yeah. Hats off. As a woman, as a girl, as a responsibility, आप जब एक फैमिली को भी लेके चलते हो, स्टडी को भी लेके चलते हो, तो इट्स रियली हार्ड कि वो पूरा कर पाना. Now you have set an example कि आपने वो कर दिखाया, तो it's a great achievement. Yes, it's about study materials and resources. Question is, what study materials or resources have you found most helpful in your preparation? Absolutely basic stuff. Like write down to जितना फैट आप कट कर सकते हो अपने रिसोर्सेज में से उतना कर दो. जो एक सब्जेक्ट है उसको आप एक ही बुक से पढ़ो, बार बार पढ़ो. Because the thing about this exam is that at the end of the day the syllabus is so vast that you can keep reading hundreds of materials but you won't retain anything. What is the point? That I did that in my second attempt. I tried कि मतलब जितनी भी नई चीज़ आ रही है ना मार्केट में या टेलीग्राम ग्रुप पे या कोई किसी ने बोल दिया कि यार ये बुक बड़ी अच्छी है, तो मेरे को बहुत फोमो होता था कि मतलब
you know, if this is a good material and what if, और ये लोग ना marketing भी बड़ी अच्छी करते हैं कि हमारे material से पिछली बार 2 question आए थे, 4 question आए थे, so then I feel very कि यार ये तो पढ़ना ही पड़ेगा. But then what that does is, once you read so many things, you're not able to recall anything, you're not able to retain anything, then there's no point, you're just wasting your time. So I think you'll agree, right? Yeah, completely agree. Because you have to minimize your resources. Take time when you are selecting your resource. Take time, but once you've selected that, you just confine to that, confine yourself to that, and have faith in that. Have Absolutely. ये FOMO वाली चीज नहीं आनी पर चाहिए. ये कंफ्यूजन है मैम कि हाँ जी. पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, यही डिसाइड कैसे करें? यार पता है, मुझे तो लगता ही नहीं कि पढ़ने से इस एग्जाम में मार्क्स आते हैं. मुझे लगता है प्रैक्टिस से ही आते हैं. ओके. चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है. At the end of the day, once you have a basic minimum amount of content in your mind, in your books, basic minimum amount, after that it's just practice. Like how many times you're able to approach different kind of questions, how many times you're able to, it's just practice. That's all. And you ma'am? पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, अगेन आई एग्री विद हर, बट एट द सेम टाइम जो आप पढ़ रहे हो उसको इतना इफेक्टिवली पढ़ो कि वो एग्जाम तक ट्रांसफॉर्म हो पाए. बिकॉज हम एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपने बहुत पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है. बिकॉज आई विल टेल यू दिस स्टोरी इफ आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी. बिकॉज मैं मेंस के टाइम पे सबसे कम पढ़ी थी. मैं बिल्कुल, मेरे को इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि 2 लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, जो बहुत पढ़ते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं. तो आई वाज द लेटर वन बिकॉज आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय पर्सनल लाइफ. आई लॉस्ट अराउंड 5 very close people from my life that time. So that was a really challenging time for me, but I just made sure कि मेरे को जो आता है 3 साल में जो मैंने पढ़ा है, I have to write that in exam because examiner को कुछ नहीं पता तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है. Whatever you'll write in that exam, he'll only check that. So that was the only thing. So पढ़ो, limited पढ़ो but अच्छे से पढ़ो. ओके. अभी स्टडी मटेरियल्स और रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम लोग. सुपर बुक्स आपने भी मैम कहा भी स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग है कि वो बताते हैं कि इस नोट से इतना आया वैसा है. तो ये एनसीईआरटी बेसिक पढ़ के ही तैयारी पूरी हो सकती है या सुपर बुक्स या अलग तरह के मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें मिल रही हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? आई थिंक बेसिक बुक्स से तैयारी पूरी हो सकती है ये नहीं पता, लेकिन वो ज़रूरी बहुत है. इट इज़ इनएविटेबल. यू हैव टू रीड बेसिक बुक्स एंड देन फॉर वैल्यू एडिशन यू कैन डेफिनेटली गो विद सुपर बुक्स और एनी काइंड ऑफ बुक्स यू वांट. बट स्टिल अगेन योर प्रायोरिटी शुड बी दैट यू हैव टू मिनिमाइज योर रिसोर्सेज टू दैट लेवल दैट यू कैन इफेक्टिवली रीड दैट अगेन. Wait, ये सुपर बुक्स क्या है? सुपर बुक्स लाइक अलग अलग नोट्स और एडवांस बुक जिसको कहते हैं आजकल. तो लक्ष्मीकांत सुपर बुक मानी जाएगी क्या? it's super book a is like a red book. हाँ. Like that. मेरे को नहीं पता था ये. ओके. इसका मतलब जरूरी नहीं है पढ़ सकते हैं, बेसिक से निकाल सकते हैं. पर आपने जब ऐसे ही निकाला है तो वो भी बेसिक से पढ़ के भी निकाल जा सकते हैं. ओके. सो एक सीरियस एस्पिरेंट्स को अपने डेली रूटीन को कैसे कैसे सेट करना चाहिए आपके हिसाब से ताकि मिनिमम टाइम में क्रैक हो सके एग्जाम? एज फॉर कंसर्न एज लाइक अगर कोई लड़की है, अगर उनके फैमिली का एक सेट पैटर्न है कि 2-3 अटेम्प्ट देने हैं, 2-3 साल ही है आपके पास, तो एक खास डेली रूटीन क्या हो सकता है जिसमें वो एग्जाम को क्रैक कर सकते? आई थिंक टाइमिंग्स वगैरह तो बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, बट यू कैन मेक ब्लॉक्स इन योर डे. लाइक ठीक है, आपको 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे बाकी सब करना है. अगर आप इस तरह से अपने डे को डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मेट बन जाता है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 8 घंटे है इस काम करने के, 8 घंटे में मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं किस हिसाब से ये डिवाइड करूँ, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम वे टू गो बाय माई डे सो दैट मेरी सारी कमिटमेंट्स भी यू नो आई कैन टेक केयर ऑफ दोज एज वेल एज नॉट बी अनफेयर टू माई सेल्फ इन माई स्टडीज़. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आप ऐसे बोल रहे हैं ना कि विमेन होती है, उनकी कमिटमेंट्स होती हैं वगैरह, आई थिंक इसको एड्रेस करने के लिए मेरे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ कहने को है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव विथ योर सेल्फ. एट द एंड ऑफ द डे टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू, you have to take care of yourself first. So don't forget that and prioritize yourself, prioritize your needs, prioritize what needs to be done for the long term. क्योंकि हम ना कभी कभी बहुत उलझ जाते हैं कि आज के दिन में ये करना है, इस हफ्ते में ये इम्पॉर्टेंट है, बट आप भूल जाते हो कि लॉन्ग टर्म विजन में क्या इम्पॉर्टेंट है.
लॉन्ग टर्म विजन में इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, आप कोशिश करते रहें कि आपकी लाइफ बेटर हो, कि आप एक बेटर स्तर पर जा पाएँ, तो उस चीज़ को याद रखें, यू नो, डेली की मच में वो भूल ना जाएं कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं आपके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिपरेशन के दौरान प्यार वार करना अलाउड होता है यूपीएससी वालों को? क्यों नहीं यार? ऐसा तो नहीं होता डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं अभी ब्रेकअप कर लेते हैं? हाउ डू यू सी, मतलब इस चीज को आप कैसे देखती हैं? वो डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपका रिलेशनशिप है जिसमें आप हर दूसरे दिन लड़ाई कर रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, रोना धोना चल रहा है, धोखेबाजी चल रही है, तो क्यों? बट इज दैट वर्क कि चलो साथ रहते हैं, साथ में तैयारी करेंगे? डेफिनेटली, लाइक व्हाई नॉट? सी, फॉर मी पर्सनली माय फियांसे वाज माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। मतलब पेरेंट्स तो थे ही ऑब्वियसली, बट अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं हो पाती। बिकॉज अगर आपके पास एक इतना अच्छा कंपेनियन है जो आपको मोटिवेटेड रख सकता है, जो तब आपको याद दिला सकता है जब आप भूल जाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जब आपको यू नो, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स आते हैं इस जर्नी में, नॉट जस्ट कि आपका अटेम्प्ट फेल हो गया, बट डेली फेलियर्स होते हैं यार, आपके शेड्यूल नहीं फॉलो हो पा रहा है, आपका टेस्ट अच्छा नहीं गया, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास अगर एक पार्टनर है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ बन के आपके साथ चलता है, तो व्हाई नॉट? पर चलो आपका एग्जाम्पल अच्छा है क्योंकि आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया है। आप बताओ मैम, क्योंकि आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कहते हैं दिल टूटने के बाद यूपीएससी निकलता है, कितने सारे लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव पॉइंट है भाई प्यार व्यार करना। तो व्हाट वाज योर टेक? माई टेक इज कि अगेन डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपका रिलेशनशिप एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच गया है जहाँ पे यू आर हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो, तो इट इज अ ब्लेसिंग if you can have someone in your life who can be there for you, because it is a very tiring process, it is a very depressing process, I would say. So if you have a person in your life who can be there with you, for you, so it's a blessing. But again, if your relationship is very toxic, just so it is very difficult to go with it along with that relationship. But that does not mean you just give up on your relation, not just a romantic relationship. I'll see any relationship in your any relation in your personal life, you have to take them along. You just can't leave them just because you're preparing for UPSC, because at the end of the day it's a job and you will need people with you after your selection also. So बस वही बात है कि यहाँ भी कंफ्यूजन है, ये क्लियर नहीं हो पाया कि आपको रिलेशनशिप में रहना या नहीं रहना है। डिपेंड्स कि आपके पार्टनर कैसे हैं। राइट, एक्चुअली आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द रिलेशनशिप। ये पता है, ये क्वेश्चन बहुत चीज़ों के लिए सेम पुट होता है कि सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए, रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो आई थिंक यू नो, आई फील लाइक गलत तरीके से आप फोकस कर रहे हो। आपको फोकस करना है अपने आप पे और आप कैसे यूटिलाइज करते हो ऐसी चीज़ों को। जैसे सोशल मीडिया का भी क्वेश्चन है, तो इट्स नॉट दैट सोशल मीडिया ख़राब है, अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप उसको इंसेसेंटली यूज़ कर रहे हो और बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो वो आपके अंदर फॉल्ट है। यू नो, कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है, आपको सोशल मीडिया नहीं यूज करना है, आपको ये देखना है आप अपना काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आज का जो गोल है वो मैं पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया, उसके बाद जितनी मर्जी रील्स देखो, जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, मेरे को आज समझ आया कि आप लोगों ने इतने सुलझे तरीके से प्रिपरेशन को समझा है, क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारे लोग उसके बाद भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक 8-10 घंटे पढ़ लिया उसके बाद भी बहुत डिमोटिवेटेड है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो प्रिपरेशन के दौरान ये मोटिवेशन को और डिप्रेशन को या सेल्फ मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? आपको कभी ज़रूरत पड़ी मोटिवेशन की? आप कभी अपने लाइफ में ऐसे हुए कि नहीं हो पाएगा लगता है? ऑफ कोर्स, हर दूसरे दिन होता है हर दूसरे दिन होता है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है इस पेपर में। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप दावे से नहीं बोल सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा। राइट, कोई नहीं बोल सकता। जो बोल रहा है उसको नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैसा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आपका हार्डवर्क और आपका स्ट्रैटेजी है, बट उसके अलावा कितने फैक्टर्स होते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सेंटर डिफरेंट है, एग्जामिनर का मूड ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता। सो ऑब्वियसली देयर इज़ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड बिकॉज देयर इज़ अनसर्टेनिटी देयर इज़ नर्वसनेस, देयर इज़ एंजाइटी, देयर इज़ क्वेश्चनिंग कि क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। So periodically you do need motivation, but at that time I would say that if your why is very strong, if you know why you're doing this, मतलब आप इससे नहीं करे कि अच्छा
मुझे गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, क्योंकि वो ना स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग पॉइंट्स होते नहीं है, वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। जो आपको डीप मोटिवेशन मिलती है ना, वो पर्पस से मिलती है। अगर आपके अंदर है वो फायर है, then you are able to tide through those bad days. Then those bad days are just bad days. They don't become कि वो stretch हो जा रहा है, वैसे नहीं होता, in my opinion. आपने we were talking about uncertainty, right? So मैं तो इतना ज़्यादा uncertain थी इस एग्ज़ाम को लेके that I didn't leave my education. I pursued higher education, I pursued masters and I did law from law faculty because I was like मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मेरे को कभी नहीं लगता था मैं ये क्लियर कर पाऊंगी. So that's why I was always having that backup. But at the same time मुझे लोग बहुत बोलते थे कि यार 3 बार प्रीलिम्स नहीं निकला है, तुम क्या एग्जाम निकालोगी. तो ये बहुत होता है, आपके रिलेटिव बोलेंगे कि शादी कर लो, कुछ नहीं रखा है इस सब में, ऐसे ही नहीं निकलते हैं यूपीएससी. ये मेरे साथ बहुत हुआ है. बट हैव फेथ इन योरसेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज योर कैपेबिलिटीज एंड यू सी वेदर यू are made for it or not. Just first deserve and then desire. If you think that you deserve it, nobody can stop it. So that's very important. एक बड़ी अजीब सी बात है, अभी आपने कहा कि जब लड़कियां प्रिपरेशन कर रही होती है तो रिश्तेदार कहते हैं कि कुछ नहीं होना, शादी कर लो. पर जब लड़के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बोलते हैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, शादी भी नहीं होगी. तो इन चीज़ों को कैसे लगती है? When I was preparing, बहुत रिश्ते आते थे शादी के लिए. ठीक है? Now I'm selected, रिश्ते आने बंद हो गए हैं. And it happens in reverse way for boys. ये कॉमन है. हाँ, ये होता है. It's very common. It's very common. पर क्यों ऐसा होता है? लाइक कोई ये सोच लेते हैं कि भाई ऑफिसर हैं तो ऑफिसर ही चाहिए. नहीं बताओ. मेरा तो मानना ये है कि पहले ये होता है कि लड़का जब ऑफिसर बन जाता है तो लोगों को लगता है यार शादी के लिए रिश्ते आने लग जाते हैं बिकॉज लड़का ऑफिसर बन गया. अब लड़की ऑफिसर बन गई है तो फिर ये लगता है कि एक तो इशू ये भी होता है कि अगर लड़की कहीं भी पोस्टिंग होगी, ठीक है, वी विल नॉट बी स्टेइंग इन वन प्लेस. सो इफ अ पर्सन इज फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, बिकॉज आई एम बनिया, सो बहुत ज़्यादा बिजनेस बैकग्राउंड से ही होते हैं हमारे सारे रिश्ते, तो फिर वो कहते हैं हम लड़की के साथ थोड़ी इधर से उधर जाएंगे. एक ये चीज़ होती है. और दूसरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो वाली चीज़ भी आती है कि लड़की, आई डोंट वांट टू से दैट. सो द थिंग इज, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हाइपरगेमी समझते हैं आप. हाँ. बेसिकली जब लड़की की शादी होती है तो बोलते हैं कि आपके हायर स्टेटस से शादी करनी चाहिए. यस यस यस. और जब लड़के की शादी होती है तो बोलते हैं कि उससे लोअर भी चलता है. ये शहर में भी चलता है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ गांव में ही सुना था. शहर में पूरी दुनिया में चलता है. दुनिया में पूरी दुनिया में ऐसे ही है. हाँ, इट्स वेरी कॉमन. इट्स अ सोशियोलॉजिकल फिनोमेना व्हिच इज वेरी and it's improving. I don't know if it's good or bad, but this is true, I think, for many societies. पर ये तो दिक्कत So है. the thing is, जब लड़के की सिलेक्शन हो जाती है, वो ऑफिसर बन गया, तो सोसाइटी की नज़र में उसका स्टेटस हाई हो गया, तो उसके ऑप्शंस बढ़ गए ना, बहुत सारे हो गए. बट अगर लड़की का सिलेक्शन होता है तो सोसाइटी की नज़र में उसकी स्टेटस हाई हो जाता है, तो अब उसके ऑप्शंस तो कम हो गए ना. बड़ी अजीब बात है ये. हाँ, मतलब सोसाइटी के ट्रूथ्स को कोई वो नहीं कर सकता. इवन जब हम लोग बाइस्ता में थे, एफसी में थे, तो हमें ये सिखाया जाता था, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए एक सेशन हुआ था जिसमें सिखाया गया था कि आपको बहुत मुश्किल आने वाली है टू फाइंड द लाइफ पार्टनर. सो हर टाइम मेक श्योर दैट यू आर फाइंडिंग इट. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब कैसे अजीब सा ये है फिनोमेना. नो, बट आई वुड लाइक टू से कि लड़कियां इससे बिल्कुल भी डिसवेड नहीं होना है. हाँ, बहुत अच्छी बात है कि कम हो जाते हैं रिश्ते. क्यों लेने हैं इतने सारे रिश्तों का, क्या Filtered हो करना है? जाता जो है. अच्छे वाले आएंगे वो बहुत सारे आएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं. इससे डिसवेड नहीं होना है कि सिलेक्शन नहीं होना चाहिए फिर शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो यू नो वी शुड क्लियर दिस अप, बिकॉज शुडंट फील दैट अब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी शादी कैसे होगी टाइप. ये कंसर्न्स ही नहीं रहने चाहिए आपके. आफ्टर सिलेक्शन योर प्रायोरिटीज आर सो डिफरेंट, यू हैव बिकम सो मच मोर रिस्पॉन्सिबल दैट दीज कंसर्न्स टेक अ बैक सीट एंड दे विल गेट सॉल्व्ड इवेंचुअली. राइट, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि ऐसे लोग बोलते हैं कि शादी कर लो, क्या ही रखा है, बट जब सिलेक्शन हो जाता है तो दैट सेम पर्सन वाज टेलिंग माय मॉम कि अभी शादी मत करना, रुक के करना, अच्छे से करना, अब तो खुद ढूंढ लेगी. हाँ, देखा ये होता है. सो मैं यही सवाल पूछने वाला था कि ऐसा कभी फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि अभी निकल गया यूपीएससी, सिलेक्शन हो गया, तो कोई एक ऐसा रिवेंज हुआ अपने लाइफ में, कुछ ऐसा बड़ा अच्छा सा मोमेंट हुआ, लाइक रिश्तेदारों से कुछ ऐसी बात हो गई कि जब मेरे पिताजी ने जिस रिश्तेदार को बोला कि मेरा बेटा ये पढ़ना चाहता है, कुछ सजेस्ट करो,
अब उसने अपने बेटे को लाया मेरे पास कि आपका तो सिलेक्शन हो गया, कुछ आप सजेस्ट करो। ऐसा हुआ आप दोनों के साथ कुछ ऐसा यादगार मोमेंट कि चलो अच्छा हुआ जो यूपीएससी हो गया, मजा आ गया? मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो ना, मुझे लगता है आपके इंटेंशंस बहुत राइट और प्योर होने चाहिए। अगर आपका इंटेंशन कहीं भी है ना कि मुझे रिवेंज लेना है, तो ऐसा मेरा मानना है कि होगा ही नहीं आपको यूपीएससी क्लियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव प्योर इंटेंशंस इन योर माइंड, और आपका मोटिव, आपका विजन बहुत क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप यूपीएससी क्लियर करोगे तो पहली बात तो शायद होगा नहीं, और वो भी क्या तो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द सर्विस। या बट मैं इनर विल की बात कर रहा हूँ। मैं मतलब ये हमारे एस्पिरेंट्स और व्यूअर्स समझते हैं, बट एक होता है ना एज ऑफिसर, आपको भी लगता है कि ये अच्छा हुआ, ये होना तो चाहिए था। कभी किसी ने आपको तारीफ कर दी जो आपके प्रिपरेशन डेज में आपके ताने मारते थे, तो यू कैन से, मतलब ऐसा नहीं रिश्तेदार तक वीडियो नहीं पहुंचेगी तो आप कह सकती हैं। नहीं पहुंच भी जाए। आई थिंक इसको देखने का नजरिया मेरा थोड़ा अलग है। इट्स नॉट कि हाँ मेरा हो गया और इनको जाके मैं बताऊंगी टाइप्स, बट हाँ एक तरह से ना, जब आपका सेल्फ बिलीफ होता है, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या डिजर्व करते हैं, और फिर आपको लोग कहते हैं कि नहीं यू आर नॉट गुड इनफ और समथिंग लाइक दैट, सो देन योर faith in yourself matters a lot. And if you know that you can do it and then you actually make it, it makes you feel good. It's not about telling them कि हाँ तुमने बोला था नहीं होगा और मेरा हो गया. It's about affirmation in your own self belief, affirmation in your own potential, understanding कि हाँ मैं ये deserve करती हूँ और मैंने इतनी मेहनत करी है और आज मुझे वो मिला है जिसके लिए मैंने इतना इतना टाइम, इतना एफर्ट, इतना सब सैक्रिफाइस किया है. तो दैट इज़ अ गुड फीलिंग. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट गुड फीलिंग कि वो अपने आप में भरोसा वापस आना, दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग. बट उससे इनका कोई रिलेशन नहीं है कि इसको मैं बोल दूँ उसको मैं बोल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है. उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आई थिंक लाइफ में. क्या दादा कुछ कह रहे थे? सो हैव यू एवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम as a girl, as a woman officer during the preparation days or after preparation, मतलब सिलेक्शन के बाद कहीं जॉब वगैरह में कभी ऐसा? आप मैम? प्रॉब्लम as a girl problem, like एक होता है ना कि पुरुष है औरत है डिस्क्रिमिनेशन टाइप, कभी प्रिपरेशन डेज में या जिनके साथ ऐसा होता है उनको कैसे, या अभी भी ये जॉब में होता है, जॉब के बाद इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? टू बी ऑनेस्ट अभी तक मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव रही है और आगे भी मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आई डिडंट फेस. मे बी वन थिंग आई रिमेंबर दैट मैं ना शुरू में कोचिंग लेने गई थी ORN, एंड वहाँ पे ऐसा होता है ना कि हज़ार बच्चों की क्लासेस हैं जैसे, और उन हज़ार बच्चों में मुश्किल से 10, 15, 20, 50 लड़कियाँ होंगी मैक्सिमम, इतनी भी नहीं होती थी. तो दैट वाज वन वेरी स्टार्क मोमेंट इन माय लाइफ बिकॉज एक तो मैं मतलब आर्किटेक्चर बैकग्राउंड है मेरा, डिज़ाइन स्कूल में जेंडर पैरिटी यूजुअली ठीक ठाक ही होती है, ऐसा नहीं है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच टाइप्स हो. तो आई वाज यूज्ड टू बीइंग सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड अराउंड मी. सो दैट वाज वन मोमेंट जब मैं गई ना वहाँ पे कि यार ये बहुत ही अजीब सा लगता है बिकॉज you feel foreign or you feel different from those people, and it's not just about going there once, it's about every day of it. So रोज आप जा रहे हो और आप stand out करते हो, even if you don't want to, आप करते हो stand out, and you can feel that people are looking at you and people are noticing you and people are giving you attention that you don't need. मतलब आप वहाँ पढ़ने गए हो as a student and you are not going there with the intention of grabbing attention. So that does feel a little intimidating, honestly. मेरे लिए थोड़ा सा difficult था to deal with that. And I remember मैं बहुत ही I used to try to reach as late as possible so that मैं फटाफट क्लास में बस बैठ जाऊँ जाके और पढ़ाई कर लूँ, and I would like get out as soon as possible because I didn't want to stay there in that atmosphere where I know there are like hundreds of eyes on me like that. That was a bit jarring for me. That I think वो था एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे, बिकॉज वो नॉर्थ कैंपस है, DU के कॉलेजेस है, वहाँ पे लड़कियों की जो लाइन होती है बहुत लंबी होती है और लड़कों की कम होती है. बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट स्टेशन इज GTB नगर.
दैट इज द हब ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वहाँ पे लड़कों की लाइन बहुत लंबी होती है और लड़कियों की छोटी कम होती है, बहुत कम होती है. इट क्लियरली सेज कि women are not that much, women think because there is this pressure of marriage and other pressures, so then they do not go for competitive exam that bravely. मे बी दे आर नॉट गोइंग फॉर इट सो मच क्योंकि घर से भी प्रेशर्स Right. अलग होते हैं. मे बी उनको दिल्ली कोई भेज नहीं रहा है, अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं मोस्टली लोग. यू नो, इट्स फैमिलीज़ का भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि हाँ लड़का है उसको भेज दो दिल्ली, जाके पढ़ाई कर लेगा, ORN में रहेगा टाइप्स. लड़कियों की फैमिली शायद ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हैं वो चीज़. But at the end of the day, if you see the Success ratio. gender ratio in the selected candidates, it's much better than the coaching classes. मतलब I was so pleasantly surprised कि जब मैं आई, it's obviously 50% नहीं है, but ऐसा भी नहीं है कि 1000 लड़कियां और 10 लड़कियां हैं. काफ़ी बैलेंस्ड है उस मामले में. तो इसका मतलब वो सारी लड़कियां कहाँ पढ़ रही हैं? घर पे पढ़ रही हैं. वो शायद नहीं आ रही हैं बाहर पब्लिक स्फीयर में, नहीं आ पा रही हैं, उनको अपने कंस्ट्रेंट्स हैं. बट हाँ डेफिनेटली ऐसे एक दो इंसिडेंट्स भी हुए थे जब यू नो समवन केम अप टू मी एंड दे से समथिंग सो अननेसेसरी टू यू दैट इट प्लेज विथ योर माइंड. बिकॉज UPSC ना एक बहुत ही मेंटल गेम है. यस डेफिनेटली. एट द एंड ऑफ द डे इफ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है तो आप नहीं क्रैक कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते विदाउट पीस ऑफ माइंड. सो ये चीज़ आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट you know everyone should stay sensitive to this. And guys, if you're living in ORN, लड़कियों को परेशान मत करो, उनको पढ़ने दो. और अगर आप घर पे रह रहे हो तो भी आप पढ़ाई कर सकते हो. कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, बस तैयारी अच्छी पूरी होनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए बस. राइट. मैम, UPSC की जर्नी में करंट अफेयर्स को बहुत ही सीरियस लिया जाता है. लाइक करंट अफेयर्स तो बहुत ज़रूरी है. अब करंट अफेयर्स के साथ दिक्कत ये है कि जो भी चीज़ करंट में होती है वो सब करंट अफेयर्स में जाती है. तो हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर्स? बहुत ही सिंपल सा तरीका है. एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए रोज़, ठीक है. आई यूज्ड टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. एंड उसके अलावा एक मंथली मैगज़ीन, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी मंथली मैगज़ीन्स निकालते हैं. आप मंथली मैगज़ीन पढ़िए, उसमें से या तो नोट्स बनाइए या हाईलाइट कर लीजिए सो दैट इट्स ईजियर टू रिवाइज. एंड आई थिंक इसका हवा बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि करंट अफेयर्स. बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट कि रोज़ 50 चीज़ें हो रही हैं. अगर 50 चीज़ें हो रही हैं तो वो पूरे साल मोस्टली चल रही हैं. अगर इलेक्शन कमीशन का कोई क्वेश्चन है तो वो एक कंटिन्यूइंग थिंग है. वो आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप उसके ऊपर आंसर अच्छे से दे पाएंगे, है ना. अगर मतलब जो भी ये टॉपिक्स हैं, थीमेटिकली इनको अप्रोच करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि सीइंग कि रोज़ में अच्छा आज ये फैक्ट चेक यूनिट का न्यूज़ आ गया, इसको ढंग से प्रिपेयर कर लो, आज ये आ गया. ऐसे अपने आप को बॉक डाउन नहीं करना है. ऑब्वियसली आप पढ़ो वो चीज़, और ये एक लॉन्ग टर्म नॉलेज बिल्डिंग का एक्सरसाइज होना चाहिए इन विच यू अंडरस्टैंड थीम्स बेटर, यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर. कि अगर अभी इजराइल पैलेस्टीन का जो भी गाज़ा में चल रहा है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो रोज़ की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें आपको इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है. ओके, हाउ डू यू सी मैम? मोस्टली I've said, but न्यूज़पेपर का एक फ़ायदा ये भी होता है that you get that perception, you get that analytical thinking in you, and that in that case it helps a lot. So newspaper is must, and then monthly magazines are there, and at last there is this compilation for the entire year. So just again I'll say have faith कि whatever you have studied enough. Just don't go with the thing that there are so much things happening, I'm not studying, मेरा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उसको उसमें नहीं जाना है और brainstorming करनी है. If you are reading something ना, just have your own opinion about it, just brainstorm, it helps a lot in mains exam I think. ओके, अभी आपने कहा मैम कि बहुत हवा है कि करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, फिर सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कोई कहता है सब कुछ सिलेबस है UPSC में, सब कुछ ही पढ़ना है. कोई कहता है इतना ज़्यादा है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, वही वाला मैटर. तो हाउ डू यू सी कैसे सिलेबस को समझना चाहिए और इफेक्टिवली उसको क्रैक करना चाहिए कि ओके ये चीज़ें हैं तो हमें ऐसे पढ़ाई करनी है. सिलेबस को कैसे समझा जाए? सिलेबस को हम बाइफरकेट कर देते हैं. एक प्रीलिम्स का सिलेबस है, एक मेंस का सिलेबस है. मेंस का सिलेबस बहुत स्पेसिफाइड है, बट प्रीलिम्स का थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, इतना पॉइंट टू पॉइंट नहीं है. तो उसके लिए आपने जितना पढ़ा है बेसिक सब्जेक्ट्स आप पढ़ो, उसके ऊपर आपका करंट अफेयर्स पढ़ो, और उसके बाद अगर आपने कहीं कुछ पढ़ लिया है तो हैव
फेथ इन पावर ऑफ योर मेमोरी। मुझे लगता है सबकॉन्शियस माइंड बहुत वर्क करता है प्रीलिम्स के एग्जाम में। अगर आपने कुछ पढ़ लिया है और वो एग्जाम में, आप एग्जाम के टाइम पे आपको वो कहते हैं ना इंट्यूशन आते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है, वो जेन्युइनली ठीक होती है, और आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो प्रीलिम्स में ये बहुत हेल्प करता है। बट मेंस में आई थिंक नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत स्पेसिफाइड सिलेबस है। आप हर टॉपिक का एक पहले से ही एक आंसर क्रिएट करके रखिए। उससे क्या होता है, एक तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको बैक टू बैक एग्जाम देना है। सो आप एक दिन पहले इट कम्स हैंडी कि आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अलग अलग सिलेबस को ऐसे हैंडल करना है। ऑल्सो वन थिंग, वैल्यू एडिशन के लिए मेरे को ऐसा लगता है आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, लुक फॉर द कंटेंट। मुझे लगता है यूपीएससी का कंटेंट हर जगह, आपने कुछ कैची लाइन देख ली, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स। आप कहीं भी कुछ भी देख रहे हो, जस्ट नोट इट डाउन, यू विल सी दैट इट हेल्प्स अ लॉट। कोई एग्जाम्पल आपने देखा कि इस इंसान ने ऐसा किया, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोट्स, जस्ट ऐड इट ऑन, इट हेल्प्स अ पता है, लॉट। इस पे मैं शुरू में हंसती थी। एक कॉमेडियन है, उन्होंने बोला था अच्छा ला लिख लूं यूपीएससी के हाँ, एग्जाम में ना आ exactly. जाए, तो मैं हंसती थी इस पे कि ऐसे थोड़ी होता है यार। बट एक्चुअली बाय actually द एंड works. ऑफ इट आई वाज लाइक हाँ ला लिख लूं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ ओके जाए। ओके। या so that is true, what she said is absolutely right. तो आपका पॉइंट क्या है, कैसे सिलेबस को इफेक्टिवली क्रैक करें और समझें? She said it, I think Okay. that's pretty comprehensively covered it कि Okay, okay. एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखें, उसके बाद थीमेटिकली उस पे आंसर्स भी, आप इंट्रोडक्शन क्या हो, बॉडी क्या हो, कंक्लूजन क्या हो, ऐसा थोड़ा सा दिमाग में आप रख लें तो आप अप्रोच इजीली कर पाते हैं आंसर्स को। तो मैम अभी आपने आंसर राइटिंग की बात की, मेरा सवाल वही था, ये आंसर राइटिंग के कोई टिप्स एंड टेक्निक्स होते हैं क्या जिससे इफेक्टिवली मार्क्स गेन होते हैं, या फिर किसी को देख के लगता है कि यार इसकी आंसर राइटिंग तो बहुत कमाल की है, इसके थॉट्स अलग हैं, तो आंसर राइटिंग के बेस्ट टेक्निक्स क्या होते हैं फिर? आंसर राइटिंग के दो अप्रोच हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। पहला ये कीवर्ड्स, मतलब जितना हो सकता है आप उसमें कीवर्ड्स को इंक्लूड करो, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, उसको बहुत सारे एग्जाम चाहिए, उसको बहुत सारे पेपर चेक करने हैं, उसको वो दिख जाना चाहिए कि हाँ इसको पता है। कीवर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ करो, और कम शब्दों में आप जितना ज़्यादा कह सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आएगा। और मेरे लिए ये भी वर्क किया था, आई यूज्ड टू सी टॉपर्स कॉपी, तो आपको थोड़ा सा वो माइंड में आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है वो कि आपको कैसे कर रहा है, तो वो हेल्प करता है। नहीं, टॉपर्स कॉपीज फॉर मी वाज एकदम मतलब पूजा करनी चाहिए उनकी। बिकॉज टॉपर्स कॉपीज क्या करती हैं, देखो यूपीएससी का चेकिंग पैटर्न वगैरह बहुत ही ओपेक है, किसी को नहीं पता कि वो किस बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं। बट आपके पास एक तरह का प्रूफ है ना, जो लोग बहुत हाई मार्क्स लेके आए हैं उन्होंने अपने सैम्पल आंसर्स अगर आपको दिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसा आंसर लिखने से शायद मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो उससे जो आपको इंसाइट्स मिलती हैं कि आप समझ पाएँ कि अच्छा ऐसे स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, ऐसे फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ये टाइप के डायग्राम्स हो सकते हैं, ये टाइप के कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, कोट्स कैसे यूज़ करने, मतलब इट्स अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। आई फील लाइक सारी प्रिपरेशन टॉपर्स कॉपी से हो सकती है। Exactly. यू नो, Because I wrote means for the first time and it helped me. या इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इफ़ यू यूज़ इट इफेक्टिवली, मतलब ये नहीं कि आप बैठ के उसको यू नो कॉमिक्स की तरह पढ़ रहे हैं। आई यूज्ड टू डू दिस, दैट मैं क्वेश्चन देखती थी, देन आई वुड ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म कि मैं कैसे आंसर करूँगी, राइट। एंड देन यू सी द टॉपर्स नोट्स एंड देन यू सी, यू नो, शुरू में तो आपको लगेगा यार मैं तो कुछ लिख ही नहीं पा रही हूँ, यू नो माई आंसर्स आर नोवेयर क्लोज टू दीज स्टैंडर्ड्स बिकॉज दे absolutely exquisite, मतलब excellent answers people have written. Sometimes I feel like यार ये लोग देख के लिख रहे हैं क्या कहीं से, इतना ज़्यादा इन्होंने facts और content और वो सब डाल के रखा है। But slowly when you keep doing this exercise where you're trying to answer it and then you're trying to match up to that topper's answer, slowly somewhere it goes into your subconscious, अच्छा मुझे ऐसे approach करना चाहिए, अच्छा मुझे ऐसे example मैं इस type के question में दे सकती हूँ, so that helps a lot. It actually happened with me कि when I wrote my first mock answer, I was just able to write 5 answers in 3 hours. I was like, ये possible भी है, लोग कर कैसे रहे हैं, ये हो कैसे रहा है, 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिख के आ कैसे रहा है। But actually it is possible now that I've done it. Practice is the key. Just practice and you'll be able to do it. तो फिर जैसे आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट देना है, जीके जीएस ये सब भी तैयार करनी है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना भी है, करंट इवेंट्स पे अपडेटेड भी रखना है खुद को, तो फिर वो कोर सब्जेक्ट जो पढ़ना होता है उन दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए? लाइक इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करना है, अपना कोर सब्जेक्ट भी ना छूट जाए, तो इसको बैलेंस कैसे बनाया जाए फिर? मुझे लगता है ये 2 अलग चीज़ें हैं ही नहीं।
ये एक ही चीज़ है। आप जो कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको न्यूज़ में अपडेटेड रहना है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया उसमें अपडेटेड रहना है। आपको साथ साथ आपको ऑब्वियसली टाइम स्लॉट बनाने पड़ेंगे कि मुझे आज ये मॉक भी देना है, ये प्रैक्टिस भी करनी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है। अगर कोई इंसान आंसर राइटिंग में अच्छा है तो वो उस पर फोकस करे जिसमें वो अच्छा नहीं है। हर किसी की वन साइज फिट्स ऑल ये वर्क नहीं करेगा। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी उसको अपने आप को एनालाइज करके बनानी चाहिए। जहाँ वो वीक है उस पर ज़्यादा काम करे और सबको इंटीग्रेटेड वे में लेके चलना चाहिए। अलग कुछ नहीं है, सब कुछ एक साथ ही है, कुछ बैलेंस नहीं करना है, वो एक ही प्रिपरेशन का पार्ट ही है। ओके ओके, आप मैम? हाँ, सिमिलर टू व्हाट शी सेड, ऐसे साइलोज में देखने का कोई मतलब नहीं है, उसको इंटीग्रेटेड सिनर्जिस्टिकली देखो कि आप जो भी पढ़ रहे हो इवेंचुअली आपने क्या करना है। इवेंचुअली आपने जाके आंसर लिखना है, तो आपका आंसर जैसे बेटर होगा, चाहे आपको करंट अफेयर्स से अपडेट करके उसमें डालना है, चाहे आपको मेन बुक से कुछ पढ़ के उसमें डालना है, जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू राइट एन आंसर। सो वट एवर हेल्प्स यू टू डू दैट इन अ बेटर वे, यू डू दैट, वेदर दैट्स प्रैक्टिस, वेदर दैट्स स्टडिंग, वट एवर इट इज़। ओके, तो आपने अगर दोनों मैम की सारी स्ट्रेटजी एंड टिप्स ध्यान से सुन ली होगी तो अब तक आपका मेंस और प्रीलिम्स निकल गया होगा। इसका मतलब अब हम अपन इंटरव्यू पे बात करेंगे कि ये स्ट्रेटजी, ये पढ़ने का पैटर्न आपने फॉलो किया, तो वी आर होपिंग कि आपके मेंस और प्रीलिम्स निकल गए हैं। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट इंटरव्यू। तो हाउ एस्पिरेंट्स शुड हैंडल द प्रेशर ऑफ इंटरव्यू? सी, एक्चुअल जो इंटरव्यू रहता है ना, इन माई एक्सपीरियंस एटलीस्ट, इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंटेरोगेटिव और यू नो इट्स, मतलब वो इंटरव्यू भी नहीं है एक्चुअली। एक्चुअली। मैं आपके पॉइंट कट करूं, पर ऐसा होता है क्या कि आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ के आया अभी नीचे? No, ऐसे सवाल होते हैं not क्या? at all, not. ये और पीछे अगर की होंगे खिड़की में भी, कितने वो नहीं है, नहीं, अगर bricks होंगे है? भी और आप बोल दें कि मुझे नहीं पता, उससे आपको कोई पेनलाइज फर्क नहीं नहीं करेगा। ओके, कुछ यार, एक बात समझो, वो इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, है ना, उनका इतना लाइफ एक्सपीरियंस है, इतने लोग उन्होंने इंटरव्यू करे हैं, वो समझ जाते हैं। वो आप जैसे ही अंदर आके आप बात करना शुरू करते हैं, मेरे हिसाब से तो उनको समझ में आ जाता है कि इनका क्या स्टैंडर्ड है, ये कैसे टाइप के इंसान है, और धीरे धीरे आपसे बात करके वो आपको जज कर सकते हैं बेसिकली। तो ना तो आप वहाँ पे जाके ब्लफ मार सकते हो, ना ही अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते तो वो इतना हार्शली आपको जज नहीं करते उस चीज़ के लिए कि ठीक है आपको नहीं पता तो नहीं पता। दैट इज़ नॉट, यू नो, इट्स रिटन इन यूपीएससी का गाइडलाइंस दैट दिस इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट। योर नॉलेज हैज़ बीन टेस्टेड इन प्रीलिम्स एंड Written मेंस। exam, आप yes. दोनों चीज़ें पार करके आए हो तो आपकी नॉलेज बेस तो काफ़ी है ऑलरेडी, है ना। तो पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक आपको इसको ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एक तो बहुत बड़ी बात है कि आप उस पॉइंट तक पहुंचे हैं, ठीक है, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, कितने लोग लिखते हैं एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए कि आप वहाँ तक पहुँच पाए। सेकेंडली, यू हैव टू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ दैट आई डिजर्व टू बी एन ऑफिसर, राइट। वो लोग वहाँ क्या देखने बैठे हैं, वो थोड़ी देखने बैठे हैं अच्छा इंसान है बुरा इंसान है मैं इसको जज कर लूँगी, ऐसे करके कोई नहीं आता है। वो बस बैठे हैं, इट्स अ जॉब इंटरव्यू। एट द एंड ऑफ द डे दे आर सीइंग इफ यू आर फिट फॉर अ जॉब। इफ यू थिंक यू आर फिट फॉर अ जॉब यू शुड बी कॉन्फिडेंट। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। मैम, आपने भी बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कैसे मतलब मॉक टेस्ट को नहीं, इंटरव्यू को स्पेसिफिक, इस वाले पार्ट को लोगों ने बड़ा ड्रामेटिक दिखाया है। आप इन चीज़ों को कैसे देखती हैं? आपने भी फेस किया है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो आने वाले नए एस्पिरेंट्स हैं उनको डरने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा? उस दिन क्या ऐसी चीज़ें याद कर लूँ कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए? देखो, इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात है, वो तो सबको पता है, मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था, जस्ट आई टोल्ड यू कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, सो आई थॉट कि एज पे क्लियर हुआ होगा मेरा मेंस, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया तो एक कॉमन फैला हुआ था कि अगर आपको 24 का बोर्ड मिलता है तो यू विल बी गॉन, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आई वाज ओनली प्रेइंग फॉर वन थिंग, भगवान 24 का बोर्ड मत दिलवाना, बाकी कुछ भी आ जाए, बाकी मैं हैंडल कर लूँगी। एंड नाउ व्हाट हैपेंस कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में इंटरव्यू होता है, आई एंटर, मैं हमेशा की तरह लेट पहुँचती हूँ, थोड़ा सा लेट, नॉट दैट लेट, थोड़ा लेट पहुँचती हूँ, और अंदर जाके पता चलता है आई एम द फर्स्ट वन टू गो। ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आई वाज नॉट वेल एट ऑल। अब मैं जा रही हूँ इंटरव्यू रूम में, आई आस्क्ड द कंसर्न पर्सन व्हाट बोर्ड डिड आई गेट। He told me कि you got 24 का बोर्ड। I'm like I'm तो gone because मेरे को लगा था मैं ऑलरेडी मींस मैंने एज पे क्लियर किया होगा, और इंटरव्यू में आई थॉट कि मैं अच्छा स्कोर कर लूंगी तो वो हो जाएगा। मैंने कहा अब तो मैं लिस्ट से बाहर हूँ, बट ठीक है, जाते हैं, एंजॉय करके आते हैं।
अब फर्स्ट इंटरव्यू मॉर्निंग शिफ्ट आई एंटर, मुझे एक्चुअली पता नहीं चला आधा घंटा कब निकल गया, बिकॉज इट्स लाइक इट वॉज लाइक अ कॉन्वर्सेशन आई एम हैविंग विद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड इट वॉज वेरी स्मूथ. फर्स्ट थिंग विच दे टोल्ड मी वॉज कि दिस इज नॉट अ पुलिस इंटरोगेशन, वी आर जस्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू. सो one thing worked for me a lot, have confidence in yourself. मतलब हो गया ठीक है, जो ऑब्वियसली का बोर्ड मिल गया, बट जाओ और बात करके आओ उनसे, और अपने ऊपर अपनी प्रेपरेशन पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखो. एंड इट वर्कड लाइक अ चार्म फॉर मी एंड आई गॉट 187 मार्क्स इन जॉब बोर्ड एंड इट वाज ग्रेट थिंग फॉर मी. ओके, तो कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत हार्ड लगा और आपने उसको कैसे टैकल किया, कैसे उसको सॉल्व किया? इस तरीके से कैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट से प्रॉब्लम होता है, लाइक ये ना रहता सिलेबस में तो हो जाता है. बहुत सारे पर टॉपिक्स उसको कैसे आपने? आई थिंक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी वाज वन थिंग जो मेरा अचलीज हील बोलते हैं ना, जो कि मतलब मैं कोशिश उसी पे करे जा रही हूँ, पर मे बी बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं था उसमें, एंड उसमें बेसिक्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इवन दो आई वॉज एबल टू स्कोर इन GS3, आई यूज टू ऑलवेज फील कि यार मेरा इकोनॉमी बहुत वीक है, इकोनॉमी बहुत वीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें, एंड आई यूज टू बी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन बीइंग एबल टू गिव अ स्ट्रक्चर्ड आंसर. बट आई थिंक ठीक है, अब मेरी सर्विस में मैं इकोनॉमी बहुत सारा पढ़ रही हूँ. आपने? मेरा बिल्कुल अगेन ऑपोजिट है. मेरे को एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हमेशा से बहुत अच्छे लगते थे. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई ऑलवेज लव्ड एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स. आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद हिस्ट्री. मुझे लगता था यार इतना कुछ याद ही नहीं रहता कुछ. बट अगेन हाउ आई डील विद इट, अगेन हैव फेथ इन पावर ऑफ योर मेमोरी. मुझे लगता है हमारी मेमोरी बहुत वास्ट है. हमें लगता है कि हमें कुछ याद नहीं रहता, बट अगेन जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन. Eventually you will be able to recall in the examination में पता नहीं क्या होता है, कुछ अलग ही पावर आ जाती है. You are able to recall it. So I think so, yeah, probably. ओके, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो भूत बन के पढ़ते हैं, लाइक 3 बजे से स्टार्ट किया तो 10-12 घंटे बैठे ही हैं. कुछ ऐसे हैं जो दिन में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, नींद आती है तो कॉफ़ी पिए जा रहे हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो स्मोकिंग भी करते हैं. उनका ये फिलोसफी होता है कि जगाने के लिए. तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डेज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कैसे बैलेंस करना चाहिए, और आप इसको कैसे देखते हैं कि भूत बन के सिर्फ पढ़ाई करना क्या सही है, या फिर अपने बॉडी को, अपने मेंटल पीस को बहुत काम एंड कूल रखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है ये एग्जाम टेम्परामेंट का एग्जाम है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू आर इन योर सेंसेस व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम. वो 2 घंटे बहुत मैटर करेंगे. उसके लिए आपको भूत बन के पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, आई विल नॉट से एनीथिंग, बट आई थिंक हैविंग अ बैलेंस बिटवीन योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन डू एनीथिंग यू वांट फॉर द फिजिकल हेल्थ. यू कैन जस्ट गो फॉर अ वॉक, और यू कैन जस्ट अवॉर्ड योर सेल्फ. अगर आपने आज कुछ गोल किया है और आपने वो अचीव कर लिया है, तो आप अपने आप को एक कुछ रिवॉर्ड दो. जैसे मुझे, आई जस्ट टोल्ड यू दैट मुझे सोना बहुत पसंद था, तो मेरा ये पेट था कि अगर मैं इतना कंप्लीट कर लूँगी, आई स्लीप फॉर 1 more extra. So just reward yourself. छोटी मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आप छोटे काम करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, और अच्छे लोगों के बीच में रहो जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको लेट डाउन ना करें, आपको मोटिवेट करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर विद पीपल हु आर गुड टू यू, हु मोटिवेट्स यू एंड यू नॉट जस्ट लेट यू डाउन. Yeah, So this works. यस, आपने? आई थिंक लाइफ में कुछ भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपकी, चाहे वो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, व्हाटएवर, इफ़ यू आर, बिकॉज दिस इज़ अ competitive एग्जामिनेशन, राइट? आप इतने सारे और लोगों से compete कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर नॉट योर बेस्ट, यू विल नॉट बी एबल टू हैव दैट एज, राइट? And to be your best, you need to be in a healthy mind, in a healthy body. So you have to take care of your health. But having said that, everyone has different systems. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इंसान जो पूरी रात बैठ के पढ़ रहा है वो हेल्दी नहीं है और जो दिन में पढ़ रहा है वो हेल्दी है. ऐसा कुछ नहीं है. जिसको जो सूटेबल लगता है अपने लिए, जिसको जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है अपने लिए, एफिशिएंट लगता है अपने लिए, वैसे आप पढ़िए. बट एट द सेम टाइम रिमेंबर टू हैव अ बैलेंस. आई थिंक इस प्रिपरेशन में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ भी साथ में चल रही है, आपकी बॉडी भी साथ में चल रही है. आप
You know, you have to take care of your body and you have to take care of your health to be able to perform your best. That's all. लाइक अगर सिलेक्शन के बाद जॉब भी कर रहे हैं तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि भाई मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रिपरेशन में ही लगा दिया, फिर सिलेक्शन के बाद दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो पर ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है पर अच्छे से पढ़ना है, लाइक कोई कुछ डैमेज नहीं करना है। ओके मैम, नाउ यू आर अ ऑफिसर, एक प्राइड की बात है। ऑफिसर ट्रेनी। ऑफिसर ट्रेनिंग पर टू बी ही होने वाली हैं आप। तो आपने प्रिपरेशन के डेज में ऐसा सोचा होगा कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगी तो सोसाइटी में ये चेंज करूंगी या मेरे को ये बदलाव लाना है। क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करने वाली हैं? देखो, ऐसा कोई वेरी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ करनी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड व्हाट यू कैन डू इज़ वर्क टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी एंड एंश्योर कि आप जिस भी सिचुएशन में, क्योंकि इतनी डायनामिक सर्विस होती है ना ब्यूरोक्रेसी, दैट आपको पता नहीं है आपके सामने क्या चैलेंज आने वाला है और किस तरह से आपको उसको टैकल करना है। तो ये हमेशा से था कि नो मैटर वेयर आई एम और व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव टू एंश्योर दैट I do it to the best of my capabilities and I'm able to have impact on people's lives. That was the main motivation. उसके अलावा personal, I think I have soft corner for women and children. So if I ever have an opportunity to be able to work in that sphere, to be able to have some contribution in that department, that would be very rewarding. Great. Yeah. आप मैम? Again, because it's a journalist service, so you don't know that what kind of challenges will be there for you. So I think one thing that I'll make sure is that a better management is there in my office. Wherever I am there and I have a team, I have resources, but at least I should use that in the best optimal manner as much as I can, so that the output can be converted into outcome. And if I talk about a specific thing, then I'm really very concerned about the education thing. I really think that it's very important that education with values are important to the people, because it's I really vision my country or people around me as people who are educated but with values. They are good human beings, and it's very, very important for anything, for any field, for be it in private sector or public sector, wherever you are, you should have that moral values, and you should not forget about your roots, forget about your culture, and I really would like to work upon that. Chuck the India type. ओके मैम, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं तैयारी के लिए, सिलेक्शन के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक सेट पैटर्न हो जाता है सवालों का। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, यूपीएससी इतनी पहाड़ की तरह है, वो थोड़ी क्वेश्चंस अपने रिपीट करेंगी। ये जो दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है, इनको आप कैसे देखती हैं? और क्या आपके तैयारी के दिनों में सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मायने रखा? आपने सॉल्व किया उसको, आपने देखा था उसको? बिल्कुल, मुझे लगता है पीवाईक्यू तो बाइबल होते हैं, उनको तो आपको आप वैसे टेस्ट सीरीज लगाओ ना लगाओ, बट पीवाईक्यू जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है, वो क्या चाह रहा है आपसे, और वो समझ में आ गया ना तो आप एग्जाम क्लियर करोगे। प्रीलिम्स में ये बहुत हेल्प करता है, मेंस में भी आप एनालाइज करो कि वो चाह क्या रहे हैं आपसे। जैसे मैंने पहले भी बोलता हूँ, यू हैव टू फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। तो आप उस एग्जाम के लिए तभी राइटली फिट हो पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपसे क्या नीडेड है, व्हाट दे नीड। तो उसके लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाकी कुछ करो मत करो, बट पीवाईक्यूज तो बिल्कुल मस्ट है। और आई थिंक ये मैंने गलती करी थी। आई वॉज दैट पर्सन जो मुझे लगता था पीवाईक्यू रिपीट थोड़ी होंगे, तो पहले कुछ अटेम्प्ट्स में मैंने पीवाईक्यू पे ध्यान नहीं दिया था। सो आई वुड लाइक टू से कि आप बाकी लोग ये गलती ना करें और पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से सीरियसली लेके पढ़ें। एब्सोल्युटली, मतलब द थिंग इज़, आपको यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है, बट आपको पता नहीं वो सिलेबस की अगर एक लाइन भी अगर वुमेन इश्यूज़ उन्होंने बोला है, तो वुमेन इश्यूज़ में से क्या, सोशल इश्यूज़ में से क्या एग्जैक्टली वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो किस चीज़ के बारे में आपको पूछ रहे हैं या किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जैसे एनालाइज करने बैठेंगे, अगर आप देखेंगे कि अच्छा ये सिलेबस का टॉपिक है, पिछले 5-10 सालों में ये टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा ओके, GS3 में साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा GS1 में सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक तरह से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन होने लगती है, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बिना तो आप ब्लाइंडली जा रहे हैं, मतलब बेसिकली यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योरसेल्फ इफ यू नॉट
reading previous year's questions. ओके, सीसेट के बदलते पैटर्न को देखते हुए बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत डर जाते हैं, मतलब डरे हुए इनफैक्ट कि बहुत बहुत वास्ट हो रहा है, इतना जल्दी जल्दी तो पैटर्न चेंज हो रहा है। आप लोग इन चीज़ों को लाइक यू आर पास्ट, तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि मतलब, और अगर है अगर भास्ट है तो आप क्या तरीका है बेटर अप्रोच के लिए? सो फर्स्टली मैं बोलना चाहूँगी डरने की कोई बात नहीं है, अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो वो सबके लिए चेंज हो रहा है। Okay. ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। सीसैट में तो वो भी नहीं है कि आपको कंपेटिटिवली कट ऑफ क्लियर करनी है, आपने बस एक कट ऑफ क्लियर करनी है। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकी सबके लिए भी वो इक्वली टफ है, राइट? सो दैट इज़ पार्ट वन। सेकेंडली, आई थिंक one thing that brings confidence is preparation. So if your preparation is strong, if you have solved previous mocks, CSAT के पुराने साल के पेपर्स आपने देखे हैं, सॉल्व करे हैं, अगर आपकी कट ऑफ उसमें से क्लियर हो रही है तो एक टाइप का कॉन्फिडेंस आपको उससे आएगा। तो डरने की तो कोई भी बात नहीं है इस पेपर से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? नहीं होगा। क्या बात, ठीक है, फिर से ट्राई कर लेंगे। ये उसमें क्या है? सैडिस्ट बात है या होप वाली बात है? ये कि रियलिस्ट ज़्यादा बात है। ओके, ये रियलिस्ट बात है। ज़्यादा व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो? आई थिंक लाइफ में और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यू नो, आपकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ, आपके कोई ऐसे सर्कमस्टांस जो बहुत ही स्ट्रांगली वो इस एग्ज़ाम में पास ना होना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आप फिर से भी दे सकते हैं, एक और बार ये आएगा। आई नो एग्ज़ाम पैटर्न लंबा है, साइकिल 1 साल पूरा वेट करना पड़ता है और बहुत निराशा होती है। मैं इनवैलिडेट नहीं कर रही हूँ वो इन फीलिंग्स को। इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मेरा भी 2 बार नहीं हुआ और मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है उस चीज़ से बाहर निकलना। बट उस टाइम पे ये याद रखना ज़रूरी है कि यार ये एग्ज़ाम है, बस ठीक है, एग्ज़ाम है, नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि माई लाइफ डजंट हैव मीनिंग और आई एम वर्थलेस, और ये वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, आप फिर से मेहनत करिए, फिर से दीजिए, और नहीं देना है फिर से तो और भी बहुत तरीके हैं दुनिया में, यू नो, अच्छा काम करने के। आई डोंट लाइक अगर मुझे भी ऐसा लगता है, जितने मैंने बातचीत करी है आप लोगों से, तो मुझे लगता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी में 3-4 साल भी अच्छे से आपने दिया है और अगर समहाउ आपका यूपीएससी में नहीं हो पा रहा है तो आप जिंदगी में कहीं भी रहेंगे तो बेहतर ही करेंगे। डेफिनेटली, तो इसलिए बिकॉज एक टाइप का वैल्यू फ्रेमवर्क आप में आ जाता है, यू नो, यू आर एबल टू वर्क हार्ड, यू आर एबल टू एनालाइज थिंग्स, एक एनालिटिकल माइंड बन जाता है आपका, फ्रेमवर्क अच्छा हो जाता है, आप पर्सपेक्टिव आ जाता है, आपको दुनिया में क्या चल रहा है वो समझ में आने लगता है। बहुत सारी चीज़ें, आपकी पर्सनल ग्रोथ आई थिंक बहुत होती है थ्रू दिस पेपर। सो इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट थ्रू, आई वुड से डोंट फील डिसअपॉइंटेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड देन यू गो फॉर दैट, यू नो, बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि आपने ट्राई किया, क्योंकि वही करना इतना मुश्किल है। इतने सारे लोग हैं जो इसी डर से ट्राई नहीं करते कि इतना मुश्किल है और मेरा कैसे होगा। तो द फैक्ट दैट यू ट्राइड एंड यू वर्कड हार्ड shows that you have courage and shows that you have ambition. So don't forget that and take that along. And you know, if you have good intentions and if you have that drive in you, the world needs you. Yeah, we need good people in this world to work hard, and there are so many other avenues where you can put in your efforts. So don't be disheartened, that's all. ओके मैम, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन लोगों को जो यूपीएससी प्रिपरेशन की शुरुआत करने वाले हैं, चाहे वो लड़के हों या स्पेशली अगर लड़कियों के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं पहले इस पे जो उन्होंने बोला उस पे एक बात कहना चाहूँगी कि एक लाइन है, वो कहते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो उससे, और इनफैक्ट आई क्लियर्ड दिस एग्जाम व्हेन एग्जाम वाज माय लास्ट प्रायोरिटी, बिकॉज दैट द ईयर इन विच एग्जाम वाज माय लास्ट प्रायोरिटी, आई क्लियर दैट एग्जाम इन दैट ईयर। उससे पहले 3 साल बहुत प्रायोरिटी से उस एग्जाम को दिया, तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट। सो उस टाइम पे मेरा एग्जाम निकला है। सो प्रीलिम्स के टाइम पे आप, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रीलिम्स इज सो अनसर्टेन कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्या ही आ गया, बाउंसर क्वेश्चंस आ गए, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है, सबके लिए है और आपको उतना ही आता है, लोगों से ज़्यादा ही आता है। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप अच्छे से गेस कर पाओगे, इंटेलिजेंट गेस कर पाओगे। Now that you asked ki what would I like to advise, then I think 3 C's work a lot in this exam. First is that you have to be consistent. Second is you should have confidence, and third is compassion, because it's very important you are competent for the exam, and that will come through your consistency, through your hard work. And second, that you have confidence to handle the temperament issues of the exam.
And third is very important is compassion, because I think this is something you are going to like, this is a job, this is not a job, this is a service. So God is choosing you for that service. God is choosing you and giving you the opportunity to serve people. So if you have compassion and if you are consistent, you are just hard working, then I think exam निकल जाता है और हो जाता है. ये हो जाता है और हो जाने तक पहुंचने का जो सफ़र है वो बड़ा लंबा है, पर सने सने आगे बढ़ना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है. जैसे मैम ने बताया कि प्लान आउट करके चलना है, स्ट्रेटजी सिलेबस को समझना है. तो होपफुली आई थिंक वी शुड कंक्लूड कि भाई आपने प्रिपरेशन जब से शुरू करी, करेज तो है, आप तैयारी कीजिए, होना तय भी है. एंड आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स पे बात कर लिए. तो थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे. जो डाउट्स आपके बचे हैं वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं. इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम. आप दोनों को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.